let us analyze the absolute tomfoolery that is happening at Barcelona. सब rant जरूर कर रहे हैं कि Barca this flick that, but let us analyze the actual tactical reason in the most simple terms. और ये simplicity understand करने के लिए जो Barca tactical mistakes कर रही है, you have to understand the impact these tactical mistakes can create. 5.65 billion euros की worth का club versus 161 million euros. मतलब अगर Girona का worth 161 रुपए है तो Barca 5,650 रुपए का worth रखती है, फिर भी हरा के चलेगा. And इसके बाद I will also reflect upon the Atletico humiliation. And contrary to the belief जिसमें हम सब कह रहे हैं कि Flick tactically rigid है, उसको possibly sack कर देना चाहिए, let us look at the actual tactical reason and know why he is actually a brilliant manager. Hansi Flick के debut campaign में Barca was sold for a high line, aggressive press and a young core of players, जिसकी वजह से 4 क्लासिको विन्स आई थी in a single season. ये same high risk, high line football जिसने Barca की last season की domestic treble को पावर किया is now looking like a clown act when it breaks. इस सीजन में पहले 4-1 battering by Sevilla in La Liga और अब एक 4-0 humiliation to Atletico Madrid in the Copa del Rey, followed by a 2-1 collapse away at Girona. In the space of just a few months, एक मॉडल एग्जांपल दिख गया है कि कैसे मॉडर्न प्रेसिंग बार्सिलोना एक ऐसी साइड में बदल गई है who look a long ball away from disaster in every game. तो ये मेल्टडाउन समझने के लिए हमको सबसे पहले फ्लिक का आइडिया समझना पड़ेगा. फ्लिक के अंडर बार्सा प्ले विद एन एग्रेसिव ऑफसाइड ट्रैप विद अल्ट्रा हाई डिफेंसिव लाइन. ये बना है टू कंप्रेस द गेम इनटू द ऑपोजिशन हाफ एंड टू विन द बॉल बैक क्विकली, जो कि ऑब्वियसली लास्ट सीजन बहुत अच्छा काम किया था, सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज इट वाज न्यू फॉर टीम्स, पर एक और रीजन की वजह से जिस पे मैं बाद में आता हूं. सी द बैक लाइन स्टेप्स अप एग्रेसिवली व्हाइल द प्रेस ट्राइज टू शट डाउन द बॉल कैरियर. अगर ये काम करता है तो बार्सा सक्सेसफुली सफोकेट्स द ऑपोजिशन. लास्ट सीजन एम्बापे को अपनी 4-0 की विन पे बर्नाबेउ में 8 बार ऑफसाइड ट्रैप करने के बाद वी कुड सी द एग्जांपल ऑफ दैट. पर जब मिडफील्ड की फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेशर ब्रेक हो जाती है, नोबडी ड्रॉप्स एंड उसकी वजह से आजकल सिस्टम लीव्स सुसाइडल अमाउंट ऑफ स्पेस बिहाइंड द डिफेंस, जो कि इस सीजन एग्जैक्टली वो है जो टीम्स टारगेट कर रही हैं. पूरा मैसेज समझने के लिए लेट अस डाइसेक्ट इट गेम बाय गेम. सबसे पहले 4-0 टू एटलेटिको. दिस गेम वाज अ टैक्टिकल क्राइम सीन. सिमियोनी ने एटलेटिको को एज यूजुअल प्रेशर एब्सॉर्ब करने के लिए सेटअप किया इन अ कॉम्पैक्ट शेप एंड देन दे वुड एक्सप्लोड इनटू द स्पेसेस लेफ्ट बिहाइंड द फुल बैक्स बाय बार्सा. एटलेटिको क्रिएटेड अराउंड 3 expected goals with only about 30% possession and generated 5 big chances and scored 3 times directly from counter attacks. Plan simple था पर brutal था. कुबार्सी और गार्सिया को हाफ वे तक बॉल ले जाने दिया और जैसे ही पेड्री या कसाडो तक बॉल आए, they would clamp Barca down and once they would win it, they immediately fire passes into the channels left behind Balde and Koundé for runners like Lookman और Griezmann. Alvarez false 9 पे ड्रॉप करता रहा, जिसकी वजह से कुबार्सी लाइन से ड्रैग आउट हुआ और चैनल्स और बड़े हो गए और उसकी वजह से he directly assisted Lookman's goal by spinning and hitting the through ball into the gap. The vulnerability on which they counted on in this game was that Barca का midfield couldn't apply real pressure to the ball once they lost it और Atletico के deeper players के पास time था फिर to look up and pick those passes behind the defensive line which was sitting almost 48 meters from its own goal on average. And इससे अगर Atletico की line compare करें तो it was meager 32 meters away from goal. और इसके बाद the night only got worse when Garcia ended up with a red card late on after a desperate challenge which summed up how Barca was outsmarted in every duel and transition. अब आते हैं परसों के जिरोना वाले गेम पे. This game included a death by transitions. Barca का actually बॉल पे कंट्रोल था for large stretches of the game with about 61% possession and nearly 600 completed passes. And equalizer score करने के पहले they had an almost 1.5 xg. पर underlying problem again was rest defense and the structure behind the attack. And of course the aggressively insane high line which was around 46.8 meters away from goal which left them wide open to the vertical transitions. जैसे जैसे गेम चलता रहा, बार्सा का passes per defensive action of 7.9 ने दिखाया how aggressively they tried to press. पर सेकंड हाफ में जो फिजिकल ड्रॉप ऑफ आया, it meant that their counter press slowed down और जिरोना को प्रोग्रेसिव कैरीज बॉक्स में रैक करने का मौका मिलता गया, which was 14 in total, a season high for them against Barcelona. And कुबार्सी के गोल के बाद जिरोना even shifted into a wider 3-4-3 shape, जिसने बार्सा के डबल पिवट को पुल ऑफ किया और बार्सा के सेंटर बैक्स को रिपीटेडली एक पेसी वैनट के अगेंस्ट एक्सपोज छोड़ दिया. और ये पोजिशनल लैप्स थोमा लेमार ने पनिश किया to make it 1-1. और फिर 86 मिनट में a lack of a midfield screen helped Beltran find a pocket of space between the retreating disorganized block and he drilled the winner from the edge of the box. Juan Garcia still made 8 saves in that game to protect the lead, underlining कि कैसे बार्सा को territorial dominance के बावजूद एक transitional defeat face करनी पड़ी. See the pattern here which emerged is simple. इस सीजन में पहले भी Sevilla destroyed Barca 4-1 in La Liga by attacking in transition and exposing the line which was once again broken and gave Barca one of the worst domestic defeats in a decade. So see, analysts say कि teams have started to ignore the offside press और वो line leading striker को actually offside position में ही रखते हैं, but they utilize wider deep runners and hence crosses to bring them back onside. ये पैटर्न हमको रायो और सेविया के गेम्स में देखने को मिला. Even last season भी after taking 33 points from their first 12 league games under Flick, बार्सा ने सिर्फ 5 पॉइंट कलेक्ट किए उसके नेक्स्ट 6 गेम्स में, जब साइड्स जैसे कि रियल सोसिएडाड, सेल्टा विगो, लास पामास, बेटिस एंड लेगानेस फाउंड
ways to exploit that high line. Sure, बार्सा ने eventually adjust किया रिकवर करने के लिए, पर ये सेम स्ट्रक्चरल फ्लॉज जैसे कि पीछे बहुत स्पेस छोड़ देना, डिपेंडेंस ऑन परफेक्ट प्रेसिंग सिंक्रोनाइजेशन और एक दो बैकलाइन के लीडर्स पे रिलाई करना, ये इस सीजन भी सपोर्टेडली चैंपियंस के लिए कैरी फॉरवर्ड कर गई है. एंड जो की रीजन जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम अब वर्स लगता है, इज लैक ऑफ अ डिफेंसिव लीडर. लास्ट सीजन जब हाईलाइन ब्यूटीफुली काम कर रही थी, द बैकबोन वाज बिल्ट अराउंड एक्सपीरियंस्ड इनिगो मार्टिनेज अलोंगसाइड कोबासी, अलेहांद्रो बाल्डे एंड कुंडे, सब जो एक ऑफसाइड ट्रैप स्प्रिंग करने के लिए सिंक में मूव करते थे. मार्टिनेज इन पर्टिकुलर वाज हाइलाइटेड एज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द हाईलाइन, द कमांडर हु केप्ट डिस्टेंसेस एंड टाइमिंग स्पॉट ऑन. 2025 के समर विंडो में मार्टिनेज लेफ्ट ऑन अ फ्री ट्रांसफर टू अल नासर, स्ट्रिपिंग फ्लिक ऑफ दैट वेटरन वॉइस इन द बैक फोर, और क्लब ने उसको रिप्लेस नहीं किया, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, जिसकी वजह से इट मेड द सिस्टम हार्डर टू एग्जीक्यूट फॉर कुबासी एंड कुंडे. श्योर, गार्सिया इमर्ज्ड एज अ डेप्थ ऑप्शन इन दैट सिस्टम, बट वो एक एनॉर्मस टैक्टिकल और एथलेटिक परफेक्शन डिमांड करता है डिफेंडर्स से. बट बार्सा ने क्यों जाके मार्केट में एक टॉप सेंटर बैक नहीं खरीद लिया? वेल, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा द फाइनेंशियल टॉमफूलेरी व्हिच बार्सा इज फेसिंग. ला लीगा ने बार्सा की सैलरी कैप को ऑफिशियली 112 मिलियन यूरो से कट कर दिया गोइंग इनटू द 25-26 सीजन, जिससे उनका टोटल वैल्यूएशन लगभग 463 मिलियन से 351 मिलियन पे गिर गया आफ्टर ऑडिटर्स रिफ्यूज टू काउंट द 100 मिलियन फ्रॉम वीआईपी बॉक्सेस रेवेन्यू. एंड ला लीगा हैज बीन वेरी क्लियर, अगर बार्सा स्क्वाड कॉस्ट लिमिट को एक्सीड करते हैं तो दे कांट रजिस्टर न्यू साइनिंग्स, जिसकी वजह से हर रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट वीक एक पजल बन के रह गया. और स्पेन में सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैप होने के बावजूद बार्सा आर माइल्स बिहाइंड रियल मैड्रिड स्पेंडिंग पावर, विद मैड्रिड सिटिंग ऑन अ लिमिट ऑफ अबाउट 761 मिलियन यूरोज. सो 2025 का समर ट्रांसफर विंडो वाज मोर ऑफ अ पैच वर्क देन अ रीबिल्ड. श्योर, उन्होंने जोआन गार्सिया पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी खर्च किया, रैशफोर्ड को लोन पे लाए, बार्जी को एक बार्गेन में खरीदा, बट वेटरन्स लाइक मार्टिनेज लेफ्ट एंड सेवरल स्क्वाड प्लेयर्स वर पुश्ड आउट टू बैलेंस द बुक्स. तो एक तरह से आपके पास एक ट्रिपल विनिंग स्क्वाड थी जो कि वीकर थी इन दैट एग्जैक्ट एरिया जो कि पूरे टैक्टिकल आइडिया को अंडरपिन करती है, एक डिफेंसिव लीडर, व्हाइल द क्लब इज फोर्स्ड टू स्पेंड व्हाट लिटिल रूम इट हैज ऑन अपॉर्चुनिस्टिक मूव्स और फ्यूचर पोटेंशियल गैम्बल्स इंस्टेड ऑफ रीइंफोर्सिंग दैट डिफेंसिव स्पाइन. ये कोई स्पोर्टिंग प्लानिंग नहीं हुई, दिस इज फाइनेंशियल हैंगओवर फ्रॉम years of levers, lost stadium revenue and La Liga's registration rules squeezing every decision. एक और बड़ा फैक्टर behind Girona and Atletico collapses है कि physical और mental load of players playing the flick ball with this squad. Data और analysis ने बार्सा को इस सीजन repeatedly highlight किया है about how intense their pressing is. They lead the league in high regains and maintaining a very low passes per defensive action when the team is fresh. पर same sources ये भी दिखाते हैं कि जब those legs go late in the games या फिर congested fixture periods में, तो pressing drops a fraction of a second and that is enough to completely expose the highline, जैसे कि जिरोना के 14 प्रोग्रेसिव कैरियर्स इनटू द बॉक्स में दिखाया गया है. इस सब की वजह से बार्सा को एक आइडेंटिटी ट्रैप में फंसना पड़ गया है. सी, फ्लिक इतना कमाल का मैनेजर क्यों है? फ्लिक हैज बीन पब्लिकली एडमेंट अबाउट द हाईलाइन, जो कि दिखती डेंजरस है बट आजकल है नहीं, बट अगर वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड हो तो लास्ट सीजन का ट्रेबल एब्सोल्युटली बैक्स हिम अप. बट हियर्स वेयर फ्लिक की कोई गलती नहीं है. स्क्वाड इज वीकेंड इन डिफेंसिव पोजीशंस, राइवल्स ने ट्रैप को एनालाइज कर लिया है एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ प्रेसिंग इज ड्रॉपिंग, जिसकी वजह से एक स्टबर्न आइडेंटिटी जो कि ट्वीक्स नहीं ले रही है इज स्टार्टिंग टू लुक लाइक एरोगेंस मोर देन ब्रेवरी. Sure, he could always pull back the defensive line a bit. एक steady anchor deploy हो सकता है in front of the defensive line to protect them during those transitions. But we are talking about a club like FC Barcelona who are defined by excellence. और excellent players are exactly what's needed to pull off this system by Hansi Flick. And of course वो अपने system से हटना नहीं चाहता. This is what exactly got them success in the last season. But here's what Barca will have to do if they have to achieve any success this season. They either have to compromise the system या फिर defensive leadership में एक proper investment चाहिए और a real relief on the financial side. वरना ये Barcelona will always continue walking the tightrope between genius and absolute tomfoolery. तुम्हें क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में बताना. If you liked the video, please like and subscribe. मिलते हैं in the next video of Off the Ball.